Sir, good evening. Thank you very much, sir, for giving the opportunity. From Telugu Party, I wholeheartedly support this bill. And of course, I definitely partially agree with my predecessor who spoke against reservations. Reservations leading to perpetuation of this transgender quality. Sir, before, as he requested to go deep into this issue, I would like to draw the attention of the genetic formation of the child. What is the genetics of the human beings? A female is born when XX genes are there, when male is born when XY gene is there. There are certain genetic malfunctions and malformations, thereby there are double XY. There can be X double Y. These are also sexual genetical variations resulting in the abnormal childs. Adding from the genetics to the genetics, there are certain studies made by psychologists. The original psychologist, Sigmund Freud, he has dwelt upon the child and the transgender on psychosexual development. He said there are oral stages, anal stages, sexual stages, phallic stages. There are so many stages, each taking place at each fixed interval. Whenever there is a confusion, whenever there is a mixture of these stages, the transgender emerges out. Physically, anatomically, functionally, that means physiologically, all transgenders are like males or females. We only see male transgender. I had to come across female transgender. Very, very rare condition. The commonest condition is male transgender, which we come across on the streets every day. They are very strong. Physically, they are very strong. There are instances in the mythology. There is a Sakandi, which fought and appears in during Mahabharata war, and the whole war changes. And at the same time, we have seen a lot of transgenders kept in the big kingdoms and kings to protect the females and queens. So functionally, they have been used like that. Sir, it is a very most unfortunate. The pitiable, the pathetic conditions of the transgenders were picturized in a one movie called Pakistani movie, Bhol. If anybody watches that movie, they can understand the plight of a transgender, the pain and agony of the parents of a transgender. When a transgender is born, nobody can identify whether he is going to be transgender or not. It is only at the age of puberty and the age of exhibiting the sexual qualities one will notice. The female transgender can be easily tackled. The male transgender is very difficult to identify. But easy identification can be done by genetic, but it is mostly psychological and functional. The functional aspect of a transgender, there can be some malingering, there can be some pretensions, there can be anything. But true transgender, how to identify is a big question. It can only be concluded or inferred by the continuous monitoring of a behavior of the person, thereby certifying, yes, he has become a transgender, refusing to marry a opposite sex. When they are preferring the same sex for their partnership, they are the first sign of the transgender. Therefore, medical diagnosis, trying to determine anybody's transgender quality through medical diagnosis will definitely lead to fiasco. It cannot conclude anybody's transgender quality by medical tests. But as I said, all transgender males will definitely have XY and they will be tested as a males. They will produce male hormones. They are also capable of producing children because their testes, testosterone, prostate, urethra, everything intact, everything physically, muscular, proteins, carbohydrates, the distribution of them in the body, perfectly all right. The only thing is functional. Functional means psychological. Thinking, the cognitive functions are not as per the male as assigned during the birth. Therefore, it's a very difficult situation, a difficult bill. As Honorable Minister said, it has been already discussed in the High Supreme Court. We are only discussing about the Supreme Court judgments.
Sir, it is not easy to Supreme Court also to pronounce as transgender. Every scientist who studied the male behavior, every scientist who studied the genetics also equally confused. Such a confused state of a human functionality, if it codify as a bill, if anybody tries to pass a judgment on a transgender, it will be a grave injustice, there will be miscarriage of justice. Therefore, lot of caution need to be exercised, lot of sympathy need to be exhibited, lot of restraint instead of ridiculing them, teasing them and laughing them. That is why I requested the members who are interested in knowing the pain and agony of the transgender himself and the parents of the transgender also to see a Pakistani movie called Bol. If you see that Bol, it will make us very clear what is the confusion. Therefore, there are anatomical confusions, there are psychological confusions, there are genetic confusions, there are functional confusions, there are cultural confusions. Above all, that is agony. Nobody can quantify the agony unless one experience itself. It is a pathological also, on the verge of psychiatry also. It is a combination of anatomy, physiology, biochemistry, psychiatry, psychology, culture, all put together is transgender. Let us not hasty in coming to any conclusion about transgender and the bill also. It needs a lot of constraints, lot of restraint in passing of each thing. There are so many provisions made in the bill. Let us devote more time in protecting their rights. At the same time, let us not perpetuate them. As my colleague said, there may be attempts made by artificially making them transgenders by undergoing surgeries and other things, because the definition includes the transgender means any person by birth also induced to transgender either by hormone or by laser. Therefore, those are also included. Those people who are being induced, who are being operated to become transgender will also be entitled for transgender. Therefore, let us not encourage the induction of the transgender by artificial means. Let us recognize only those transgenders who are functionally, psychologically transgenders, but anatomically, physiologically belong to original to their genetics as per birth. Thank you, sir. Jai Telugudesam, sir. श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी मंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है कि इस बिल के बाद सारी जो लोगों की आशंकाएं हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगी जब ये बिल केंद्र सरकार लेकर आएगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और ख़ासकर हमारे मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वैसे लोगों के बारे में सोचने का काम किया, या इस सरकार ने वैसे लोगों का सोचने का काम किया जो अनुराग सिंह ठाकुर जी अभी बता रहे थे कि 68 साल से किसी भी सरकार ने इस समाज के लिए न सोचा, न किया, न करने का प्रयास किया, और हमारी सरकार इसको करने का प्रयास कर रही है, वो धन्यवाद की पात्र है। जो त्रिची सिवा जी द्वारा राज्यसभा में पास किया हुआ बिल है और जिसको हमारे काबिल दोस्त वैजंत पांडा साहब ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, इस बिल में कई के खामियां एक सरसरी निगाह से, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन देखने के बाद मुझे दिखाई देता है कि इस बिल में काफ़ी खामियां हैं। जैसे जो क्लाउस 10 है, 10 है, 10 में जो आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी, सबसे पहले कह रहे हैं कि एनी पर्सन register organization who or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been or is likely to be committed against any transgender person may give information about it। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा और चीज़ें आएगा। इस देश में जिस तरह से हम कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रुक जाने वाली हैं? जिस तरह से दबाव डालकर जो है, इस तरह ये यदि कानून होगा, अब आप समझिए कि हमारे यहाँ आते हैं ये लोग कभी शादी के मौसम में आ जाते हैं, विवाह के मौसम आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त आ जाते हैं, कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है उस वक्त आ जाते हैं।
किसी को अच्छा लगता है कि उनको बुलाकर बात करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। कोई ऐसा होता है परिवार जो कि पैसा नहीं दे सकता है। यदि वो पैसा नहीं देगा या अपना गेट नहीं खोलेगा तो आपको ये नहीं लगता कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सीधा उसको जेल भेजने के लिए काबिल हो जाएगी, लायक हो जाएगी? क्या इस तरह का बिल हम चाहते हैं? जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपने कभी इन चीज़ों को रियलाइज़ किया? वो ज़बरदस्ती आते हैं ना, हम तो उसको बुलाते नहीं। इस हाउस में बोलने के लिए बहुत लोग हैं। एक आदमी बताइए जो उनको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ शादी हो रहा है, आप आइए, हमारे यहाँ विवाह हो रहा है, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आइए, हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा हो रहा है, आइए। वो आते हैं, आना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते। और पैसा जब नहीं देंगे वो, और जब इस तरह का ये बिल आएगा तो क्या होगा? इसमें लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसके बारे में अपने को जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद आपने जो क्लॉज नंबर 13 है, 13 में जो आपने एजुकेशन की बात कही है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज shall ensure that all education institution funded or recognized by them provide inclusive education and inter alia। इसके बाद ये बातें कही है। अब आप समझिए कि इस देश में प्राइवेट एजुकेशन में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका भी 25% वो एडमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप एक नया जो है सिचुएशन पैदा करेंगे, और ये जब सिचुएशन पैदा होगी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको कितना ले पाने के लिए लायक होगा, और नहीं होगा तो वो लिटिगेशन में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। अभी आप देखिए कि दिल्ली सरकार रोज किसी न किसी को लिटिगेशन में फंसाने की बात कर रही है, उसका एसेट क्रिएट किया हुआ उसको लेने की बात कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पॉइंट नंबर 13 है, इसको मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल क्यों पास नहीं होना चाहिए, और सरकार का बिल इन सारे कंसर्न को देखते हुए क्यों आना चाहिए, मेरा ये कहना है। हम उनके पक्ष में है, ट्रांसजेंडर के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए बिल आना चाहिए, लेकिन इस बिल की जो समस्याएं हैं उस बिल के बारे में मैं कह रहा हूं। इसके बाद उसका क्लॉज नंबर 21 देखिए, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन एंड ऑल प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल रिजर्व 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच क्लास और कोर्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। अभी मंत्री जी ने जो बात कही, क्योंकि जो अनुराग जी कह रहे थे कि इसका अनुवाद जो है उचित नहीं है, मुझे भी लगता है कि विपरीत लिंगी नहीं, ये उभय लिंगी होगा। उभय लिंगी मतलब कभी भी जब वो महिला बनना चाहे तो महिला बन जाए, जब वो पुरुष बनना चाहे तो पुरुष बन जाए, मतलब उनके पास जो है दोनों तरह की क्वालिटी होती है, महिला और पुरुष दोनों की क्वालिटी होती है, इसलिए वो ट्रांसजेंडर हैं और इसीलिए वो उभय लिंगी है। अब आप ये समझिए कि ये यदि आप 2% सीट रिजर्व करेंगे तो 2% सीट कैसे रिजर्व करेंगे? महिला के लिए रिजर्व करेंगे कि पुरुष के लिए रिजर्व करेंगे? मतलब आप शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करेंगे कि शेड्यूल ट्राइब? क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, जो बात मंत्री जी कह रहे थे, उसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जो बच्चा शेड्यूल कास्ट में पैदा होगा वही शेड्यूल कास्ट होगा, जो बच्चा शेड्यूल ट्राइब में पैदा होगा वही शेड्यूल ट्राइब होगा। हम कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि यह भी शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, यह भी शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसमें आप 2% का यदि आप कोटा निर्धारित करने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल वो है। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि 23 और 24, क्लॉज नंबर 23 और 24, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट provides incentive to employers in the private sector to ensure that at least 2% of their workforce is composed of transgender person। अब आप खुद ही प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, बैजंत पांडा साहब, मतलब आपके फादर का था, मतलब मैं ये कर रहा हूं फादर का है, फैमिली चलाती है, मतलब मैं ये कर रहा हूं, लेकिन एमपी बनने के पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जानकारी होगी। आप ये बताएं कि अभी पूरे देश भर में माहौल है कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, वो देना चाहिए। अभी तक कोई भी सरकार यही निर्णय नहीं कर पाई है, प्राइवेट सेक्टर को हम यहां तक ही नहीं खड़ा कर पाए, और हम एक नया बिल जो है एकदम जबरदस्ती, जब तक अभी तक वो बिल नहीं आया है, ये बिल हम लेकर आ जाएंगे कि आपको 2% जो है ट्रांसजेंडर को देना ही देना है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आ पाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ विश्वेश्वर रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ खुद ही एक बड़ी अपोलो ग्रुप चलाती हैं, क्या वो 2% ट्रांसजेंडर को दे पाएंगे? तो मेरा ये कहना है कि ये सारा बिल यदि हम पढ़ते तो आपको खुद ही लगता कि इस बिल में जो है बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।
इसके बाद यदि आप देखेंगे इस बिल का 47 ट्रांसजेंडर राइट्स, इसमें आपने कहा है कि मैं स्टेब्लिश फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट सेल स्टेब्लिश फॉर ईच सिटी। कोर्ट जो है, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के सामने एक फोटो आया, आप सही है या गलत है, लेकिन अखबार के माध्यम से वो खुद ही रो रहे हैं कि जज नहीं है, इतना हम केस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इतना एस्टेब्लिशमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं, और उसके लिए हम कह रहे हैं इस ट्रांसजेंडर के लिए प्रत्येक जिले में जो है हमको एक एक कोर्ट देना है। कहां से कोर्ट दे देगी सरकार, क्या कर देगी? तो मेरा ये कहना है कि ये बिल जो है ये रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक बिल है, और सरकार जो है यदि नया बिल लेकर आएगी तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए अच्छा होगा और ट्रांसजेंडर के लिए भी अच्छा होगा। हम एक लिटिगेशन में फंस रहे। दूसरा बात यह है कि बेल्जियम के एक राइटर हैं कोनाल्ड इल्स साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, निगेशनिज्म इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि भारतीयों को भूलने की बीमारी, और भूलने की बीमारी यह है कि हम अंग्रेजों के बारे में तो बहुत बातें कहते हैं कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर लिया, चीजें कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के पहले जो लोग आए उसको जो हम आत्मसात करने की बात करते हैं, तो अपने हम ये नहीं कहते कि उनको आत्मसात मत करिए, क्योंकि 6ठी शताब्दी के पहले यहां कोई इस्लाम नहीं था, यह फैक्ट। 6ठी शताब्दी के पहले हिंदुस्तान में एक भी आदमी मुसलमान नहीं था, इस्लाम नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि हम इस्लाम के विरोधी हैं, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब है कि कहां से हिंदू कल्चर खत्म हुआ, इसको जानने की बात। यदि ट्रांसजेंडर का ये कानून है, जैसे अभी अजय मिश्रा साहब बात करते हुए कह रहे थे कि 1871 में एक कानून बनता है, अंग्रेज बनाते हैं, और उस कानून के आधार पर आज हम इसकी बात करते हैं, और इस सदन में ही कई एक ऐसे लोग हैं उनको लगता है कि ट्रांसजेंडर के लिए, LGBT के लिए हम ही ऐसे पहले सिपाही हैं जो लड़ने को तैयार होते हैं। हम तो इससे आगे थे। यदि भारत के संस्कृति की बात करेंगे तो नरसिंह अवतार की बात करते हैं ना, गणेश की बात करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश तो आधा जो उनका भाग है वो पशु का था और आधा जो है वो पुरुष का था। तो आप ये समझिए हम तो उससे भी आगे थे। यदि हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे या नरसिंह अवतार की बात करेंगे, यानी यदि शिखंडी को आप छोड़ दें तो किस तरह का माहौल था। तो मेरा यह कहना है कि हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति था उसने हमेशा इन चीजों को, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर का भी एक्सट्रीम ट्रांसजेंडर हो, यानी पशु और मनुष्य का भी यदि कोई मिलन हो तो हम तो उसको हमेशा से मानते रहे और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम गणेश की ही पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार जो है 10 अवतार में जो है एक अवतार नरसिंह अवतार भी है। तो मेरा यह कहना है कि 1871 के इस एक्ट के बाद यदि हमको लगता है कि हम एक नया चीज करने आ रहे हैं और उनको समाज में हमको सम्मान देना है, समाज में सम्मान तो ये भारत पर जिन लोगों ने अटैक किया, जिन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने जिस ढंग से कानून बनाकर उनको कुचलने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहला अटैक किया। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें से अपने को कोई बहुत सिंपैथेटिक होने की आवश्यकता है। और यदि आप देखेंगे तो रामायण की यदि कहानी आप देखेंगे कि रामायण में जब 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास में जाने लगे तो उन्होंने लौटने के लिए कहा पूरे अयोध्या वासियों को कि भैया आप लौट जाइए। तो उन्होंने कहा महिला को कि महिला लौट जाइए, पुरुष को कहा पुरुष लौट जाइए। उसके बाद भी कुछ लोग थे जो कि उनके पीछे जा रहे थे और पीछे जा रहे थे तो उन्होंने लगा कि ये मेरे प्रति इतना इमोशनल है, मेरे प्रति इतना कमिटेड है कि ये जा रहा है, तो उसको रोककर उन्होंने कहा कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम किसी का शादी हो, विवाह हो, चीज हो, जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी सेवा लोग नहीं करेंगे, तब तक जो है उसका पूरा नहीं होगा। और ये वरदान उन्होंने दिया। यही इसी के आधार पर जो है किन्नर, हिजड़ा या जिन चीजों की बात चलती है वो उन चीजों की बात जो है वहीं से चल रही है। अभी भारतेंद्र जी ने जिस अरिवन की बात कही, मतलब भरतरी भाई हैं वो शायद वो कहने आ रहे हैं कि 14 साल बाद जब वापस आए तब वो वहां पर बैठे हुए। चलिए सर, मैंने कहा था उस दिन चेयरमैन सर वो बैठे थे, मैं उसी में आ रहा था। नहीं बोलिए कि जब ये सारे अयोध्यावासी गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा पार होने से पहले राम जी ने कहा कि आप वापस चले जाइए, जो नर है, जो नारी है, आप सब वापस चले जाइए अयोध्या और मैं 14 साल के बाद आपको आके मिलूंगा। 14 साल के बाद जब वो लौटे
उन्होंने देखा कि कुछ अयोध्यावासी वहीं बसे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो कहा सब आप वापस चले जाइए, फिर आप गए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग कहे कि आप तो नर को बोले और नारी को बोले, हमें तो नहीं बोले। तो उसी दिन से वाल्मीकि जी ने रामायण में जो लिखा है किन्नर, ये शब्द वहीं से आया है। मैंने इसलिए उस दिन मंत्री जी को कहा कि ये ट्रांसजेंडर और विपरीत लिंगी जो शब्द आपने कह रखे हैं हमारे साहित्य में और वाल्मीकि जी के शब्द में ये आया है किन्नर, और ये शब्द आप अपने हिंदी ट्रांसलेशन में लाइए। जब आप सरकार की तरफ से आएंगे तो हम सहज से आसानी से समझ जाएंगे कि किस वर्ग को आप कह रहे हैं। तो वो गंगा किनारे में वो किन्नर थे, शायद राम जी के साथ वो फिर अयोध्या लौटे 14 साल के बाद। तो लौट आए वो जी। वो भी लौट आए और भरत जी भी लौट आए। इसी तरह से यदि जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में भी साइकोलॉजिकल सेक्स की बात जो है कही गई है। मैं जो ये कह रहा था कि निगेशनिज्म इन इंडिया है, आप नहीं थे भरतरी भाई, मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा था कि गणेश की कैसे पूजा होती है, नरसिंह अवतार क्यों होता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि जैन धर्म को भी लेंगे साइकोलॉजिकल सेक्स है, और इवन जिसको हम लोग भूल गए हैं, यदि मुगल दरबार की भी बात करेंगे, ऑटोमन एम्पायर की भी बात करेंगे, तो सभी जगह जो है उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। और जो गायत्री रेड्डी जी आपके यहाँ की, उन्होंने बड़ी अच्छा किताब लिखा है कि विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स निगोशिएटिंग हिजरा इन साउथ इंडिया, जो लिखा है उसमें इन सारे चीजों का जो है उन्होंने डिटेल जिक्र किया है। मतलब मैं उस किताब को बहुत पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आज जो सिचुएशन है पूरी दुनिया का, उस पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है और अपने को क्या करने की आवश्यकता है। और इसमें जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसको लगता है कि पूरे दुनिया में एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरह की चीजें होनी चाहिए। और जिस तरह से इवन फाइनेंस के भी चीजों में यदि WTO के प्रभाव को यदि आप देखें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि पूरा दुनिया जो है एक बाजार है और सभी दुनिया में एक तरह से ये काम करें। और इसी कारण से जो आर्टिकल 6 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसका जो आर्टिकल 16 है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो 1966 में रिकॉग्नाइज किया गया, और जो आर्टिकल 17 है ICCPR स्टेट्स का, उसने कहा है कि कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस जो है इस तरह के समाज में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए एक मीटिंग जो है गडजा मादा यूनिवर्सिटी योगकर्ता में जो है वो 6 से 9 नवंबर 2006 में एक मीटिंग हुई कि पूरी दुनिया में इस तरह ट्रांसजेंडर के लिए किस तरह से कानून बनना चाहिए, किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है। और वो उसने जो कुछ योगकर्ता प्रिंसिपल जो है, जो जिसके आधार पर कि पूरी दुनिया ने कई एक दुनिया ने अपना कानून बदला, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी उस योगकर्ता प्रिंसिपल के आधार पर जो है आगे बढ़ेगी। उसने पहला काम किया कि द राइट टू यूनिवर्सल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी स्वागत बाबू भी बात करते हुए बता रहे थे, भारतीय जी बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन ये सभी जगह इसमें होता है। और उसमें से स्टेट्स को उसने कुछ सुझाव दिए, राज्य को कुछ सुझाव दिए कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। और उसने कहा कि संविधान में एक अधिकार देना चाहिए, संविधान में अधिकार देना चाहिए। जो आर्टिकल 14 जो हमारा है, यदि 14, 15, 19, 21 और 53 को यदि एक साथ 253 को यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे भारत के संविधान में भी ये सारी चीजें हुई हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका था वो गलत था। तो उसने कहा, उसके बाद जो कहा कि क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो 1871 का एक्ट था,
जिसके आधार पर आप ये कह सकते थे कि इन लोगों को क्रिमिनल की श्रेणी में ला गया, जिसको भारत के आज़ादी के बाद जो है हमने चेंज करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी गांवों में यदि आप देखेंगे कि यदि ये लोग आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कहीं चोरी करने के लिए तो नहीं आ गया, कहीं चकारी करने के लिए तो आगे नहीं गया, कोई मारपीट बाबरिया जैसा गैंग यदि होता है तो उसमें लोगों को लगता है कि कहीं ये यही तो एक्टिव नहीं है। तो उनको जो क्रिमिनल एक्टिविटी है इससे कैसे अलग करेंगे, ये हुआ। इसके बाद जो तीसरा सवाल था, जो उस दिन डिस्कशन में जब बैजंत बाबू बोल रहे थे तो बताया उन्होंने कि शिक्षा जो है, शिक्षा और उनके ऊपर जानकारी, अवेयरनेस जो है वो एक बड़ा विषय है और इसके ऊपर जानकारी करने की आवश्यकता है। उसमें प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने जो है रोकते हुए कहा कि हमारे यहाँ एक एमएलए भी हो गई और जो एमएलए हुई वो एमए पास है, मेयर भी हुई, वो एमए पास है, तो वो वुमेन कॉलेज में प्रिंसिपल भी हो गई। मतलब ये है, लेकिन ये सब उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन कोई भी समाज ऐसा है जहां की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनमें शिक्षा और अवेयरनेस उनको हो, ये उसका पॉइंट था। और उसके बाद जो था कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी का जो पहला पॉइंट था उसमें जो योगकर्ता प्रिंसिपल्स है इसमें से पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि राइट्स टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी जो मैंने आपको कहा कि भारत के संविधान में ऑलरेडी है, लेकिन मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यदि यह समझ में आता है कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वलिटी उनमें नहीं है, आर्टिकल 14, 15 का वायलेशन हो रहा है, 19 का वायलेशन हो रहा है, 253 इसमें नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस कानून में ये बातें करनी चाहिए कि उनकी इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी बात है। क्योंकि समाज में ये जो बीच का जो 150, 200, 400 साल का जो इतिहास है, क्योंकि इसके पहले तो मैंने आपको बताया कि उनको कितना सम्मान होगा जिस महाभारत के युद्ध का जिक्र कर रहे हैं। यदि शिखंडी को सारथी बनाकर लाया गया तो उनकी योग्यता पर तो, क्षमता पर तो बहुत विश्वास होगा ना, क्योंकि लड़ाई जो है भीष्म पितामह से हो रही थी और भीष्म पितामह महाबली थे, बाहुबली थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। और यदि किसी ने अपने रथ का सारथी शिखंडी को बनाया तो केवल दिखाने के लिए तो नहीं बनाया होगा, कोई डर से तो नहीं बनाया होगा। यदि मान लीजिए कि भीष्म पितामह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा छोड़कर महिला के ऊपर यदि बानी चला देते, यदि महिला थे या पुरुष थे, वो महिला के ड्रेस में थी, तो क्या, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे इतिहास में नहीं है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है, और जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले 300-400 साल से चल रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यदि कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हमको लगता है कि उस प्रिंसिपल के आधार पर जो है अपने को करना चाहिए। बिरहन लला वो अर्जुन थे, वो अर्जुन थे, वो 1 साल तक, और वो भी एक निर्दिष्ट टाइम समय के लिए ही ट्रांसजेंडर हुए थे। वो 1 साल के लिए अज्ञातवास में जब थे, एक निर्दिष्ट, एक लिमिटेड। और उत्तर कुमार का सारथी होके वो कौरव सेना का सामना किए थे। जी। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो बात आई है, और मुझे लगता है कि वो ये होगा कि राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, काफी अध्ययन है, फायदा उठाना चाहिए। जी, कानून में जो है इन लोगों को रिकॉग्निशन होना चाहिए। क्योंकि आज जो सवाल है कि आज ये सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले जो एक बड़ा सवाल था कि इनको किस श्रेणी में रखा जाए, ये किस श्रेणी के लायक हैं, कौन सी चीजें हैं, और जो थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने माना उसके हिसाब से हमको लगता है कि सरकार को उसके ऊपर सोचने, कंसीडर करने की आवश्यकता है कि कानून के नजर में उनका रिकॉग्निशन है कि नहीं है। एक इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कैरोलिना में हाल ही में बना है, शायद मंत्री जी गौर करें, वहां एक आईन अभी हाल ही में बना है और उनको कहा गया है कि ये जो थर्ड जेंडर की शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं, वो टॉयलेट को जब जाएंगे वो अपने जेंडर की टॉयलेट को ही जाएंगे, वो ना मेल टॉयलेट को जाएंगे ना फीमेल टॉयलेट को जाएंगे। But that will be discrimination. That will be discrimination then. सभापति महोदय, जो चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ, हाँ, ये